अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज शोन बाय अल्केन्स एंड दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमने पहले ही डिस्कस किया है, फिर और एक बार हम देखेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ओके, फर्स्टली कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स। कन्फर्मेशनल isomers or conformational isomerism. Okay, and this isomerism is typically shown by alkanes. Now what is the definition of this conformational isomerism or the conformational isomers? The isomers which results due to carbon carbon single bond rotation. अब देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल होता है अल्केन्स में। अल्केन्स कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट। तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब हम रोटेट करते हैं तो हमें जो आइसोमर मिलते हैं उनको हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो राइट ऑन द डेफिनेशन हियर। व्हाट इज द कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म? अ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर फर्स्ट, the isomers which are obtained by carbon carbon single bond rotation, carbon carbon single bond rotation are called what? Conformational isomers. Okay, and the phenomena is called conformational isomerism. Note down this definition first, then we'll see the example. Okay, now let's see the example of this conformational isomerism or conformational isomers. Now see here friends, carbon carbon single bond we can rotate, okay, and by mere carbon carbon single bond rotation we'll get conformational isomers. Okay, अब देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं। इनन्यूमरेबल conformation, such innumerable conformations can be possible for this alkanes. Okay, अब देखो मैंने अगर इथेन लिया तो हमने एक एग्जांपल लिया था in previous lectures that ethane it can show different types of conformational isomers. Okay, अब ये conformational isomers तो numerable innumerable हो सकते हैं, infinitely you can rotate this carbon carbon single bond and by rotating carbon carbon single bond the position of the atoms which are attached to the carbon it also get changed. Okay, so innumerable such conformational isomers will get conformations actually, अब इनको conformers भी बोलते हैं. Note down this point that they are also called conformers. So innumerable conformers we get by such a carbon carbon single bond rotation. ठीक है, लेकिन इतने जो conformational isomers होते हैं उनमें two extreme conformational isomers are very important and they are staggered and eclipsed conformations, right? हमने ये भी देखा था. फिर एक बार हम देखते हैं how to draw the Sahar's projection formula, Sahar's formula and Newman formula for ethane for this conformational isomers. Okay, अब देखो मैं यहाँ पे draw कर रहा हूँ. Now draw, you also draw these structures. The carbon carbon single bond is shown by slanting line and suppose these are the three hydrogens, okay, on each carbon atom. This is called Sahar's projection. अब ये दो कार्बन है, this is one carbon, this is another carbon. It is shown by a slanting line, okay, and these three hydrogens which are attached to each carbon they are shown. Now, and this is what eclipsed conformation. Eclipsed conformation. ठीक है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन अगर आपने देखा तो देखो यहाँ पे slanting line I am showing. Suppose I have
rotated carbon carbon single bond and it gets such position, suppose the position of atoms changed, okay, this is called staggered conformation. Staggered conformation. Now these projections, they are called Sawhorse formula. Staggered and eclipse, this is Sawhorse formula. Sawhorse formula, okay. Draw this figure. ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है. अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट रख दिए तो आपको इजीली समझ में आएगा. देखो यहाँ पे समझो मेरे पास है ब्यूटेन. अगर ब्यूटेन है मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3, तो मैं इसको इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म में रख सकता हूं. अब ये दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन, दिस इज फ्रंट carbon hydrogen bond and back carbon hydrogen bond, they are in front of each other, okay. Whenever the bonds they are in front of each other, अब ये जो कार्बन है, देखो ये समझो ये बॉन्ड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये दो हाइड्रोजन है और ये दो हाइड्रोजन. इट मींस these two hydrogens, these bonds, they are in front of each other, these two hydrogens they are in front of each other, then that conformation is called eclipsed conformation, okay. अगर समझो ये हाइड्रोजन है इस कार्बन पे और बैक कार्बन पे ये हाइड्रोजन इस एंगल से, ठीक है. सो द डायमेंशन, इफ यू सी द कंफर्मेशन, दिस कंफर्मेशन, दे आर एंटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ये एक बॉन्ड है और बॉन्ड को एक हाइड्रोजन है अपर साइड और दूसरा हाइड्रोजन है लोअर साइड. सो दिस इज व्हाट वर्टिकल 180 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. सो दैट कंफर्मेशन इज कॉल्ड स्टैगर्ड कंफर्मेशन एंड इट इज अ स्टेबल कंफर्मेशन, ठीक है. कंफर्मेशन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? स्टैगर्ड कंफर्मेशन. क्यों होता है? क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड है, दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. सो बॉन्ड मींस द इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे विल रिपेल ईच अदर इन स्पेस. अगर वो अपोजिट एंगल में एट 180 डिग्री, अगर उनका एंगल है देखो 180 डिग्री, इफ दे हैव द एंगल देन दे हैव मिनिमम रिपल्शन, ठीक है. इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर देखिए आपने तो इक्लिप्स से ज्यादा कौन सा है? स्टैगर्ड कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है. अब और एक एग्जांपल हम लेते हैं इसमें. बिफोर दैट वी विल ड्रॉ न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर दिस. अब यहाँ पे अगर आपको न्यूमन प्रोजेक्शन इसको ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. देखो ब्यूटेन का भी हम ड्रॉ करेंगे. अगर मुझे इसी स्ट्रक्चर का ये जो सॉहर्स फार्मूला मैंने ड्रॉ किया है, अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है न्यूमन प्रोजेक्शन में, तो मैं कैसे लिखूंगा? दिस इज फ्रंट कार्बन, इट इज शोन बाय डॉट फ्रंट कार्बन, उस पे हाइड्रोजन है 3, ठीक है. और बैक कार्बन जो दिखा है हमने वो सर्कल से दिखाया है, उस पे जो 3 हाइड्रोजन है मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है. ये फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स और ये बैक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है. They are in front of each other means the theta in them HC, the bond angle is what? This theta, that is called dihedral angle, is 0 degree. थीटा यहाँ पे थीटा को क्या कहते हैं हम यहाँ पे? डायहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल इट इज कॉल्ड, ओके. अब ये जो एंगल है अगर 0 है तो दो जो बॉन्ड्स है, द बॉन्ड CH बॉन्ड of front carbon and the back carbon CH bond, these two bonds they are in front of each other means the theta is 0, then that conformation is unstable conformation because they repel each other, okay. अगर आपने देखा ये देखो ये HCH, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में, ठीक है. देखो ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन पे मैं 3 हाइड्रोजन दिखाता हूं, these are the 3 hydrogens, okay. This is front carbon, these are the 3 hydrogens, and now back carbon 1, 2 and 3, okay. बैक कार्बन के जो है ये जो हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है. देखो ये फ्रंट कार्बन 1, 2, 3 A, B, C, I will note down this, okay. A, B and C,
ठीक है, एंड फॉर योर कन्वीनियंस एक्स वाई जेड बैक के, सो एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बी हाइड्रोजन एटम एंड एक्स हाइड्रोजन एटम, दे आर एंटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, अपोजिट, ठीक है। अगर प्लेन देखा उनका हमने, तो उनका प्लेन कैसा है, दे आर जस्ट अपोजिट, वन इज अबव द प्लेन, hx is above the plane and hb is below the plane। एक प्लेन है समझो, ऐसा प्लेन है, तो प्लेन के बिलो है हाइड्रोजन बी टाइप और हाइड्रोजन एक्स टाइप अबव द प्लेन। सो द बॉन्ड एंगल अगर देखा आपने डायहेड्रल एंगल, तो इनमें कितना है 180 डिग्री, थीटा हियर इज 180 डिग्री, ओके, सो रिमेंबर दिस, थीटा इज 180 डिग्री, ठीक है। y एंड c, अगर y और c देखा आपने z, ओके, like they are also in opposite planes, so they are also having what, theta 180 degree, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर देखा आपने, तो अगर देखा a b c, ये जो है कोई भी बॉन्ड लो आप, they are in front of each other, that is theta is 0 degree, so ये न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, ये न्यूमन फार्मूला और ये सॉहर्स फार्मूला, ठीक है। सॉहर्स फार्मूला हम ऐसे दिखाते हैं, पहले आप सॉहर्स फार्मूला नोट डाउन करके लो और फिर हम न्यूमन फार्मूला ड्रा करके लेते हैं, ओके। First draw the Sahas formula, then you will draw Newman formula, ठीक है। Sahas formula ड्रॉ करो, फिर उसके बाद हम न्यूमन फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। न्यूमन फार्मूला, नेक्स्ट फिगर न्यूमन फार्मूला, न्यूमन फार्मूला and drawing the Newman formula now, eclipse and staggered conformation, eclipse and staggered conformation। eclipse में दोनों भी bonds in front of each other होंगे, देखो front carbon 3 bonds and back carbon 3 bonds, ठीक है, front carbon और ये back carbon, theta is 0 degree and यहाँ पे ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन, ठीक है। थीटा इज हियर 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा किसका है, ये थीटा मींस थीटा हियर इज h डैश c, बैक साइड का hc और फिर वो कार्बन सामने वाले कार्बन को अटैच है, फ्रंट कार्बन को अटैच है, फिर उस कार्बन पे हाइड्रोजन है, HCCH angle, that is the theta, you can say this is the dihedral angle, okay। So note down this diagram, draw this diagram first, you can write it Newman projection formula, okay, Newman projection formula। Newman projection formula, so in this way you can draw different conformations। और एक एग्जांपल हम लेंगे इसमें, अब ब्यूटेन का अगर लिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इक्लिप्स और स्टैगर्ड कंफर्मेशन देखते हैं हम ब्यूटेन का, इथेन का हमने देखा, अब ब्यूटेन का मैं ले रहा हूं एग्जांपल, देखो कंफर्मेशनल आइसोमर्स इन ब्यूटेन, आपको पूछ सकते हैं इस पे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, कौन सा आइसोमर ज्यादा स्टेबल है और क्यों, ठीक है। Now see here, conformational isomers of butane, ब्यूटेन की conformational isomers हम देखते हैं, ठीक है। What is the formula for butane? It is CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अगर आपको टोटल स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालना है इसका, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको HCH CHH बॉन्ड C डैश H डैश H बॉन्ड CH3, ठीक है, ओके। अब देखो मैं ये कार्बन, 2 कार्बन चूज कर रहा हूं, दिस 2 कार्बन्स, पहले हम सॉहर्स फार्मूला
इसका ड्रॉ करेंगे सॉहर्स फार्मूला में। फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन। इस फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक मिथिल ग्रुप है, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो 2 हाइड्रोजन और एक मिथिल ग्रुप, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और एक मिथिल ग्रुप। और अब बैक कार्बन, उस पे भी 2 हाइड्रोजन मिथिल ग्रुप। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? CH 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 CH3 CH3 CCH3 CCH3 bond. They are in front of each other. So it is what Sahars projection formula or Sahars formula. ठीक है, it is eclipsed. और अगर आपको इसका स्टैगर्ड निकालना है, स्टैगर्ड देखो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया मैंने, सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा रहा हूँ, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे अबोव प्लेन पे मिथाइल ग्रुप डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन दे आर आल्सो एंटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब देखो दिस CCH3 बॉन्ड एंड दिस CCH3 बॉन्ड, लुक एट दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज बिलो द प्लेन एंड दिस बॉन्ड इज अबव द प्लेन, ओके। ये अबव है और ये बिलो है, तो इस कंफर्मेशन को हम कहते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन, ओके। इट इज स्टैगर्ड। सो ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट। ब्यूटेन के हम कंफर्मेशन आइसोमर्स देख रहे हैं दोस्तों। और एक हमने कंफर्मेशन आइसोमर देखा था, इसमें और एक पॉसिबल है, देखो उसको हम कहते हैं गॉच कंफर्मेशन, ठीक है। गॉच कंफर्मेशन देखो, समझो अगर थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा 180 डिग्री, यहाँ पे थीटा है 0 डिग्री, और एक गॉच मैं ले रहा हूं, देखो और एक रोटेट किया हमने, यहां पे समझो मेरे पास है, ठीक है। एक कंफर्मेशन ऐसा है, नहीं तो आपने ऐसा भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा, ठीक है। यही सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो समझो मैंने एक ऐसा ड्रॉ किया, फ्रंट कार्बन विथ इट्स बॉन्ड एंड बैक कार्बन। अब यहां पे समझो मेरे पास है, यहां पे CH3 और यहां पे CH3, तो ये एंटी हो गया, ठीक है। लेकिन समझो मेरे पास है CH3 ऐसा इस पोजीशन पे, अब देखो CH3 जो है, अगर बॉन्ड एंगल देखा आपने तो यहाँ पे 60 डिग्री आता है, देखो दोस्तों 60 डिग्री। हाउ इट इज पॉसिबल? फ्रंट कार्बन में दिखा रहा हूं, देखो न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में आपको क्लियर होगा। अब ये फ्रंट कार्बन है, इसको 3 बॉन्ड अटैच है, ठीक है, 3 बॉन्ड्स आर अटैच्ड, 1 ग्रुप अटैच्ड इज CH3 हाइड्रोजन 2, ओके। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं ये हाइड्रोजन, फिर ये मिथिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। अब अगर आपने ये देखा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये 60, ओके, और 60, तो ये 60, ये 60 और ये 60 टोटल होगा 180, ठीक है। तो मैं इतना ही बॉन्ड एंगल दिखाता हूं। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा दोस्तों, दिस बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री, ओके। सो इट इज 60 डिग्री, हेंस इट इज कॉल्ड गॉच कंफर्मेशन, it is called Gauch conformation. So out of these 3 conformations, अब CH3 में दोनों भी कार्बन पे हाइड्रोजन एटम्स थे, तो वहां पे डिसाइड नहीं हो सकता कौन सा गॉच है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कंफर्म कर सकते हो कौन सा गॉच कंफर्मेशन है और कौन सा स्टैगर्ड है, कौन सा इक्लिप्स है। तो इक्लिप्स में अगर ये CH3 बॉन्ड, ये कार्बन CH3 ये कार्बन CH3 इन फ्रंट ऑफ ईच अदर आ गए तो वो इक्लिप्स है। अगर वो परपेंडिकुलर है या अपोजिट प्लेन पे है तो वो स्टैगर्ड है। इन बिटवीन है यानी थीटा 60 डिग्री है, CH3C डैश CCH3 बॉन्ड एंगल देखो, CH3 ये कार्बन, फिर बैक कार्बन और उसको CH3 अटैच, वो अगर बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री, तो उसको हम कहते हैं गॉच कंफर्मेशन। तो इसमें स्टेबिलिटी अगर देखिए आपने तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पहले ड्रॉ करो ये स्ट्रक्चर्स, ओके, आइसोमर्स, ड्रॉ दिस कंफर्मर्स।
देन विल सी द स्टेबिलिटी। ओके, तो ये तो स्टैगर्ड हो गए। अब इसको मुझे ये स्टैगर्ड इक्लिप्स और गॉच हो गए, सॉरी ये सॉहर्स फार्मूला हो गए। अब न्यूमन फार्मूला आप सभी का ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसका न्यूमन फार्मूला इक्लिप्स का। देखो ये जो स्ट्रक्चर स्टैगर्ड हमने निकाला था उसका मैं इक्लिप्स निकाल रहा हूँ। ये सॉरी सॉहर जो निकाला था मैंने, तो मैं सॉहर्स का कन्वर्ट कर रहा हूँ न्यूमन में। सॉहर्स फार्मूला इज नाउ आई एम कन्वर्टिंग इनटू न्यूमन फार्मूला, न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं तीनों स्ट्रक्चर जो हमने सॉहर्स में देखे थे, अब हम उसको न्यूमन में देखेंगे। ठीक है, देखो पहला स्ट्रक्चर देखा था हमने, दैट इज CH3 HH फ्रंट कार्बन, और सॉरी ये जो हमने पहला दिखाया था वो कैसा था, डायरेक्ट फ्रंट with respect to front to them। ठीक है, these two bonds they are in front of each other, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये CCH3 बॉन्ड भी in front of each other है, CH भी बॉन्ड in front of each other है, दो इक्लिप्स है, थीटा 0 है। ठीक है, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में। ठीक है, न्यूमन ये सॉहर्स प्रोजेक्शन, सॉहर्स स्टैगर्ड। अब मैं न्यूमन इसी को न्यूमन में कन्वर्ट करता हूँ। देखो CH3 HH, now see this bond angle is what, theta is 180 degree in staggered। ये जो दो बॉन्ड है they are perpendicular to each other, you can clearly see this now। okay, you can clearly imagine these two bonds, they are in opposite plane, on the opposite plane, so the theta is 180 degree, so they have stable conformation, this is a stable conformation। अब देखो ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट, क्राउडिंग इफेक्ट। अब देखो ये कार्बन है, उस पे 3 हाइड्रोजन है, फिर बैक साइड पे जो CH3 है उस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। वो जो बॉन्ड पेयर्स है वो एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है, दे रिपेल ईच अदर, और इसलिए वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। लेकिन ये CH3 अबव द प्लेन है, दूसरा CH3 बिलो द प्लेन है। फ्रंट कार्बन को जो अटैच्ड CH3 है वो बिलो द प्लेन है, और बैक कार्बन को जो अटैच्ड CH3 है वो अबव द प्लेन है, तो उनका रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, सो दे आर फ्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, they will not repel each other। okay, so that is the stable conformation। now अब हम देखेंगे इसमें, ये अगर हमने गॉच कन्फर्मेशन देखा तो गॉच कन्फर्मेशन में मैं दिख रहा हूं, देखो गॉच में देखा आपने 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, this is the gauge conformation we have। okay, so draw this Newman formula also, Newman projection formula also for butane। okay, draw this Newman projection formula for butane। ओके, सो अगर आपको एग्जाम में पूछा, आपको एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आउट ऑफ दिस कन्फर्मेशंस व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें बल्कि ग्रुप कहते हैं इसको, ये अपोजिट प्लेन को होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर स्टेबिलिटी ऑर्डर, सो राइट डाउन नाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, स्टैगर्ड। सबसे कम स्टेबल कौन होगा, जब वो फ्रंट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होंगे, तो सबसे कम इन बिटवीन कौन सा होगा, गॉच। ओके, सो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर दिस कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सी है, देखो राइट डाउन द स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड रिमेंबर दिस ऑलवेज, स्टेबिलिटी ऑर्डर of conformational isomers। स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर ऑफ conformational isomers, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इट इज स्टैगर्ड, थीटा इज 180 डिग्री। ठीक है, विच इज मोर स्टेबल देन गॉच, in which theta is
60 degree, and least stable is eclipsed, which is having theta dihedral angle 0 degree. ठीक है? So remember this stability order of conformational isomers. Okay? So it is very important one. So in this way we have seen the conformational isomers in alkane. So alkane show chain isomerism and conformational isomerism. Okay? ठीक है?